मितुल त्रिवेदी जैसे आदमी को ढूंढ के जीवन में कुछ ले लिया है. Because he is really, though we have been discussing about secrets of Vedas and Vedic science and its application to rocket science and all other things, I feel he is a very mysterious man. He has got a lot of talents. A formal introduction of Dr. Mitul Trivedi will follow by one of our colleague and coordinator of lecture and seminar committee. But I sincerely believe that we all should support the endeavor and help and assist him in promoting our ancient literature and Vedas, because what he has found during my deliberations and conversations with Dr. Mitul Trivedi, I have always found, I am really convinced that whatever technology that we see today, the technology had existed in the past. In the past, when I say, I'm not talking about the past 5 years, 10 years, 50 years, or before independence. I'm talking about the past, which dates back to 5,000 years old. So each and every one of us, being civil engineer or an architect or any other person related to our country, should be very proud of our heritage. And I congratulate Dr. Mitul Trivedi for taking up such a wonderful endeavor that he is promoting the ancient knowledge of India. He is trying to convince other people in the world about the relevance of modern day technology with the ancient knowledge that we have got. He has also circulated certain personal videos to me suggesting about the law of Gurutvakarshana, that is the gravitational force. And we all have been consistently being taught that it was first discovered by Newton, who saw an apple falling from the tree. Like many people have seen apple falling from the tree, and many others would also have thought about it. And he has come out with certain shlokas from our Vedas, which suggest that people in those days, like I'm talking about days of Vedas, Rigved, Yajurved, in those days also, it was clearly mentioned in Vedas that there is a force of attraction which unites the whole solar system. There is a solar system. That is also what is mentioned in the Vedas. And people were also knowing about this gravitational force, because that has been very clearly mentioned in our ancient literature. So today he is going to highlight to us the secrets of Vedas, and would also try to relate that with the Vedic and Egyptian civilization. So once again, I welcome each and every one of you. Mukesh has already requested all of you. I would also personally request you that please mute your audio, which is compulsory throughout the session. If you find there is some difficulty in listening after muting your audio, I would also request you to stop your video streaming. I think that will definitely help you in getting a clear voice, because it will clear the traffic on and use the less bandwidth. So it will clear the traffic on the net. So video on is okay with every one of us, but if you find it difficult to hear the audio, please stop your video sharing. I think that will certainly help you in listening to Dr. Mitul Trivedi very precisely. So once again, I welcome each and every one of you. I welcome to today's our speaker, Dr. Mitul Trivedi. Now I will request coordinator of lecture seminar committee, Dharam Bhagat, to introduce Dr. Mitul Trivedi to all of us. Dharam. Thank you, sir. Dr. મિતુલભાઈ ત્રિવેદી આપણી વચ્ચે એક એવું રત્ન છે કે જેનું મૂલ્ય કદાચ આપણે આંકી શકીએ એમ નથી. गुजराती, आई थिंक हिंदी और इंग्लिश प्लीज सर. सो हमारी बच में एक ऐसा रत्न है डॉक्टर मितुल त्रिवेदी, जिसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते. आज इसका इंट्रोडक्शन मुझको देना है, तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़े डिग्निटरी का इंट्रोडक्शन जब देना होता है तो आपके कुछ भाग्य ही रहे होंगे आपको इतना ऐसा मौका मिलता है. उनके स्कूलिंग के बारे में एक्सपेरिमेंटल स्कूल में से अपना स्कूलिंग किया हुआ है, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने खुद से भी एक्सपेरिमेंटल स्कूल से मैंने भी स्कूलिंग किया है. तो हम लोग स्कूल के वो हमारे सीनियर रहे. उनका जो कॉलेज करियर रहा है वो उन्होंने VNSGU में से हायर एजुकेशन VNSGU में से लिया हुआ है. वो इसरो और नासा के लिए काम कर रहे हैं और हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे. वो अलग अलग 32 प्रकार की लैंग्वेज जानते हैं और उसका नॉलेज वो अपने आप में रखते हैं.
और आज की तारीख में भी वो अलग अलग नॉलेज, अलग अलग जगह का नॉलेज या फिर भाषा का नॉलेज वो लेने के लिए आज की तारीख में भी उतने ईगर है। तो ऐसे विद्वान पुरुष हमारे बीच में आज उपस्थित है, तो उनका स्वागत तो बहुत बड़ी तालियों से होना चाहिए। फिर भी उनके मान में एक छोटा सा संस्कृत श्लोक में बोलना चाहूंगा। विद्वत च नृपत्व च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका मतलब ये है कि राजस्व प्राप्ति और विद्वत्व की प्राप्ति का किंचित मात्र भी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि राजा की पूजा तो केवल अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा पूरे संसार करता है। आज उसी का कारण है कि नासा भी उनको मान रहा है और दूसरे कंट्री भी उनको मान रहे हैं। तो ऐसे विद्वान पुरुष हमारे बीच में है, तो उनका स्वागत करते हैं हम, और आज का सेशन आगे बढ़ा रहे। ओवर टू यू नीलेश सर। Thank you very much, Dharam. We just take a few seconds to recognize all the dignitaries who are present here. I recognize the presence of H.T. Shah sir, who is past president of ICEA. I also recognize the presence of several other past presidents, Engineer B.K. Patel, Engineer Janak Trivedi, Engineer Jabir Choksi, Engineer Nishikant Bhai Mistry, and Engineer Vikesh Bhai Vimawala, who are present currently in this webinar. I also recognize the presence of ICE President Janak Bhai Trivedi and SUNIT Alumni Association Surat Chapter President Akshay Bhai Bachchigar. I also recognize the presence of certain leading personalities of Surat. Jignesh Bhai Amin from Credai is also attending this seminar. I would also recognize the presence of very famous and knowledgeable builder of Surat, Prakash Bhai Patel, a very leading Rotarian who is also attending this seminar. So once again, I welcome all the dignitaries, and over to you, Mitul Bhai Trivedi. Thank you, Nilesh Bhai, Rugesh Bhai, Dharam Bhai. મારા વિશે બહુ બધી ઘણી બધી વાતો કરી નાખેલી છે અને બહુ બધી ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દીધેલી છે, એટલે વધારે સમય નહીં લઉં. જેમ તમે લોકો બિલ્ડિંગ બાંધો છો તેમ અમે લોકો સમાજના નિર્માણ કરવા માટે વેદોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ધેટ્સ ઇટ, વી આર ડુઇંગ ધેટ થિંગ. ઓકે, हिंदी सॉरी. मेरे इस सेमिनार में आप सबको वेलकम. और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज का जो सेमिनार है वो सेमिनार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर हम लोगों को लगे तो डेफिनेटली अपनी कमेंट्स में लिख देना. मैंने मैक्सिमम ये ट्राई किया है बिकॉज दिस वन इज रिलेटेड टू द वेदास, और वेदास को समझना दैट इज नॉट दैट मच इजी. फिर भी मैंने ये कोशिश की है कि जितना हो सके उतना मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकूं, कॉमन मैन तक उसको ले जा सकूं. मेरा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक नीलेश भाई ने जैसे एक्सप्लेन किया है कि द सीक्रेट बिहाइंड द वेदास, वेदा का सीक्रेट क्या है, और उसके अंदर स्पेशली जो टॉपिक है दैट इज इजिप्शियन कल्चर एंड वैदिक कल्चर. तो वो टॉपिक अब मैं शुरू करता हूँ. मैं पूरे ये जो सारी एक्टिविटीज करता हूँ दैट इज अंडर माय ब्रांड नेम वैदिक विलेज. और ये वैदिक विलेज के अंदर ये सारी चीजें मैंने एक एक करके काफी सारी चीजें मैंने इंट्रोड्यूस की है. और उसके अंदर मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि मेरा एक कोशिश ये रहता है कि ट्रूथ बिहाइंड द हिस्ट्री, यानी ये सारी जो चीजें हैं उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी हम बताते हैं उसका सच क्या है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. सो लेट्स बिगिन द वेदों का रहस्य. इसको मैं 4 भाग में डिवाइड करूंगा. पहला भाग रहेगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन, प्रारंभ. सेकंड पार्ट विल बी द हिस्ट्री ऑफ वेदास, हम वेदा की हिस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे. थर्ड वन विल बी द इजिप्शियन कल्चर, इजिप्शियन कल्चर क्या था और कितने पुराना था. हेलो, कैन यू हियर मी? Yeah. Okay, it is very much audible. Okay. And the fourth one will be the इजिप्ट की और वैदिक सभ्यता की कंपैरिजन. ये 4 फेज में मैंने ये पूरा सेमिनार डिफाइन किया हुआ है. और आखिर में एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से और बहुत मजा आएगी ऐसी एक चीज बात करूंगा, वैदिक जीवन शैली. जो मैंने ये डिफाइन किया है कि भाई हम ये जो पूरी जो हम वेदों की बात करते हैं या जो भी हम बातें अभी तक कर रहे हैं, कैन वी इम्प्लीमेंट इन अवर रूटीन लाइफ, तो वो भी मैंने इसके अंदर थोड़ा कवर कर लिया है. सब लोगों को शायद इसमें मजा आएगा, क्योंकि रूटीन लाइफ के साथ वेदों की लाइफस्टाइल कैसे कनेक्ट करनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल में दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. ओके,
So the first one is Praram. Hemsworth, History of the World, Volume 1, पेज 53, जिसके अंदर ये बताया गया है कि हर मनुष्य को क्या चाहिए। तो कि मनुष्य को जीवन में सुख और शांति चाहिए। नॉर्मली समृद्धि सबके पास होती है, वेल्थ सबके पास है, लेकिन क्या वो वेल्थ से वो दे आर सेटिस्फाइड? सुख है, शांति है, दैट्स इट। अच्छा, इसको पाने का दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज भौतिकवाद। नॉर्मली क्या होता है कि हम जिस लोगों से प्रभावित होते हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज से हम काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं हमारे, तो जो हमें प्रभाव है या जो हमें प्रभावशाली हमारे ऊपर बनता है, या तो फिर क्या होता है कि हम खुद उनकी तरह प्रभावशाली बनने की कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या इनसे, तो कि जिसने हमें प्रभावित किया, जैसे कि यूरोप ने सबको प्रभावित किया, तो इससे क्या हुआ कि भारत की या पूरी पृथ्वी की जो भी प्राचीन सभ्यता थी, यूरोपियन कंट्रीज पूरे पृथ्वी पे हर जगह पे फैल गया। तो उससे जो वहां की जो ओरिजिनल प्राचीन सभ्यता थी, जो ओरिजिनल कल्चर था, वो बदलने लगा और धीरे धीरे पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स, पूरा अर्थ एक यूरोप बन गया था। दूसरा जो तरीका है दैट इज आध्यात्मिक साधनों से हम सुख शांति पाने की बात करते हैं, तो दैट इज हिस्ट्री। अभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आध्यात्मिक सुख शांति से हम लोग अभी रूटीन लाइफ के अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें या किस तरह से करें। तो दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम सुबह आधा घंटा 1 घंटा योग कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, और हम लोग मानते हैं कि दैट इज आध्यात्मिकता, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इतना सही नहीं है दोस्तों। तो अब हमें ये जानना है कि भाई वेदों से हमें क्या मिलता है। हमें इतिहास और वेद जानने चाहिए। अगर जानने चाहिए तो क्यों जानने चाहिए? तो दोस्तों, ये 40 दिन जो गए अभी तक, उनके अंदर सब अपने अपने हिसाब से जो आइसोलेट हो गए, क्वारंटाइन हो गए, तो सब एक तरह से देखा जाए तो सब ये वैदिक लाइफस्टाइल में ही चले गए थे। घर पे खाना, घर पे बनाना, घर पे अगर काम वाली बाई नहीं आती है तो घर पे उसी तरह से कामकाज करना, ये जो सब तरीके हैं वो हमें वापस एंशिएंट लाइफस्टाइल के अंदर लेके चले गए। हमारे पास जो गैजेट हैं, हमारे पास जो टीवीज हैं, हमारे पास जो मीडिया है, उसका भी हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है। हाँ, टेक्नोलॉजी का हमने ये, जैसे जूम की मीटिंग है या इस तरह से हमने नया रास्ता निकाल लिया, लेकिन ये सारी चीजें हमें, देखिए क्या होता है, आप समझिए कि इसका एक प्लस पॉइंट क्या हुआ। तो कि आप में से कितने ऐसे हैं कि जिसने अपने अपने शौक हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उसको फुलफिल किया? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसने अपना शौक ढूंढ निकाला और उसको फुलफिल करने की कोशिश की। तो ऐसे जितने भी लोग थे, उन लोगों को ये एहसास जरूर कहीं ना कहीं हुआ होगा कि नाउ दे आर फोकस्ड, नाउ दे आर डूइंग दैट थिंग जो उनको चाहिए, जो उनको करना है। लाइफस्टाइल, जो रूटीन लाइफस्टाइल थी, उसमें वो लोग काफी हेक्टिक हो गए थे, काफी बिजी हो गए थे। तो अपने दिल की जो बातें थी, अपने पसंद की जो बातें थी, वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो कैसे कर पाएंगे? तो अभी दे आर डूइंग दैट थिंग, और विदाउट मॉनिटरिंग एनीथिंग, मोनेटाइजिंग एनीथिंग, कहीं पे भी कोई पैसे की लेवर देवर या उसके बगैर, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं, उससे तो एक ही चीज निकली कि पुरानी गलतियां जो है उसको हम नहीं दोहराए, और जो परिस्थिति अभी हम लोग फेस कर रहे हैं उसका हमारे पास रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया में जब कोरोना फैल गया ना, उससे पहले मोदी साहब ने हमारे यहाँ पे लॉकडाउन कर दिया था। हमारे यहाँ पे इतना संक्रमण नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोगों ने सबसे पहले ये आइसोलेशन वाली बातें, या तो फिर जो पुराने काढ़े, आयुर्वेदिक उपचार, ये सब छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने शुरू कर दी थी। तो हमने उसका हल निकालने की भी कोशिश की है। तो इतिहास और वेद क्या है, तो क्या उसने हमें ये सारी चीजें निकाल के दी है। लेकिन अगर फिर भी हम लोगों को सुख शांति नहीं मिलती है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमेम्बरिंग द गॉड। हे भगवान, अब तो तुम ही हो। तो ये जो हम ईश्वर की बात करते हैं, वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसे किसने बनाया है, हम लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। तो ऐसे कई सवाल, उसके उत्तर हम आज के ये सेमिनार में, या तो फिर हमारी ये जो किताबें और ग्रंथ को हम पलटेंगे, तो उसमें से हमें ये सवाल के जवाब मिलेंगे। इसके लिए हम लोग वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, रामायण, महाभारत जैसा ऐतिहासिक ग्रंथ, इन सब का रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सब में इतिहास छुपा हुआ है? देयर इज समथिंग इन दिस काइंड ऑफ बुक्स, या फिर ये किताबें ही ऐतिहासिक किताबें हैं?
अच्छा, एक और बात है कि ये कितने पुराने हैं, और इतने पुराने अगर है तो उसकी तटस्थता क्या है, हम क्या उसको मान सकते हैं, हम उसको फॉलो कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस, ऐसे कई सारे सवाल, और ये क्या है उसका सवाल, ये सारे सवालों के जवाब हम लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक सेमिनार जो है दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट वेदा, हम सीक्रेट ऑफ वेदास, दिस इज द फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर अनुकूल होगा या फिर कन्वीनियंट होगा तो ऐसे कई सारे सेमिनार्स हम लोग लेके आएंगे वापस। तो पहले तो हम ये करेंगे आज के दिन के ऐसे जो इतिहास में छुपे हुए जो रहस्य हैं, या जो वेदों में छुपे हुए रहस्य हैं, इसको इस ग्रंथों में क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या निकलता है, और छोटे छोटे ऐसे हम सेमिनार या छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी कहानियां जिससे हम ये उजागर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन। अब हम ये देखेंगे कि वेदों का इतिहास, यानी वेद कितने पुराने हैं। तो व्हाट इज योर थिंकिंग, हम लोग क्या मानते हैं कि भाई वेद कितने पुराने हो सकते हैं? तो हम लोगों को क्या है कि ब्रिटिशर्स, मैक्स मुलर और कुछ ऐसे जो लेखक थे या जो इतिहासकार थे, उन लोगों ने अपने अपनी किताबों में ऐसा एक रेफरेंस दे दिया कि भाई वेदों का जो इतिहास है वो करीब करीब 2500 साल पुराना है। बाल गंगाधर तिलक ने अपने किताब ओरायन करके जो एक किताब है उसमें करीब करीब 4000 साल पुराना इसका समय दिखाया है। लेकिन ये कितना है? तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि हम जो आदिम नियम, यानी जो पुराने समय से जो बने आए हुए जो नियम है, वो नियम ही हमारे संसार को चला रहा है। जब से संसार बना है, जब से ये यूनिवर्स बना है, तब से ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नियम है जिसका इंप्लीमेंट इस संसार में हो रहा है, और वही चीज हमारे ये संसार को चला रही है। वी आर नथिंग। अब ये नियम क्या है उसका पता हमें कैसे चलेगा? तो क्या आर्यों की लाइफस्टाइल से पता चलेगा, आर्यों की इतिहास से पता चलेगा, क्योंकि दे वर द एंशिएंट कल्चर। हम लोगों के लिए ये एंशिएंट कल्चर थे। आर्यन या तो द्रविडियन हम जिसको कहते हैं, हालांकि वेदों में या आर्यन या द्रविडियन ऐसा कोई वर्ड नहीं है। आर्यन मीन्स दोज हु आर द बेस्ट, जो एक लिटरेट कल्चर था उसको हम आर्यन कहते हैं। और जो द्रविडियन कल्चर हमारे हिसाब से जो आर्यन से भी पहले थे उसको हम द्रविडियन बोलते हैं। लेकिन वेदों में कहीं पे भी आर्यन या द्रविडियन के बारे में कोई रेफरेंस या कोई वर्डिंग्स ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। अच्छा, तो ऐसे नियम जो हैं वो नियम क्या है? तो वो नियमों का पता, या तो ये नियम हमें आर्यों के इतिहास से पता चलते हैं। और ये जो इतिहास है, आर्यों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, वो हम लोगों को सबसे ज्यादा कहाँ से मिली है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमें वेदों से पता चली है। तो इसीलिए दोस्तों हम क्या बोलते हैं कि ये जो वेद हैं वो सृष्टि जब से बनी है तब से ये एक ईश्वरीय कानून जो है, ये सारे जो कानून हमें नहीं पता है कि किसने बनाए हैं, तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इसको ईश्वरीय कानून बोलते हैं। तो ये ईश्वरीय कानून की जो किताब है वो वेद है। ये सृष्टि के आरंभ से है, वो चीज कैसे हमें पता चलेगा? तो कि एक चीज आप समझिए कि वेद यानी क्या। वेदों का जो मीनिंग है, वेद का मीनिंग होता है नॉलेज, ज्ञान। कैसे जीना है, कैसे और कहाँ पे और किस तरह से रहना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ऐसे जो कई सारे जो चीजें हैं उसका जो नॉलेज हम लोगों को, जो बेसिक चीजें, जो छोटी छोटी लाइफस्टाइल की जो चीजें हैं, जिंदा रहने के लिए जो चीजें हैं, उसका जिसने हमें नॉलेज दिया है वो नॉलेज दैट इज वेद। अच्छा, अलग अलग समय के अंदर अगर हम बात करें तो ये वेद भी अलग अलग समय पे अलग अलग ये कानून भी बदलते गए, और किस तरह से बदलते गए वो भी हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर पृथ्वी पे देखें दोस्तों, तो मनुष्य से पहले भी जो था वो क्या था? तो कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ये सब थे। तो दोस्तों वो लोग किस तरह से जीते थे? क्या उनके पास कोई नियम थे? अगर वो नियम नहीं होते तो वो लोग एक सिस्टमेटिक वे के अंदर जिस तरह से जीते थे, पेड़ पौधे जिस तरह से उगते थे, या तो फिर जिस तरह से खुराक लेते थे, या जिस तरह से यूनिवर्स के साथ तालमेल मिलाते थे, पशु पक्षी जिस तरह से तालमेल मिलाते थे, एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करके जिस तरह से पूरे कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ रहते थे, तो वो सब कैसे रहते थे? तो उसके लिए जो एक कानून था, वो जो नॉलेज था, वो नॉलेज हम लोगों को उस वक्त नहीं पता था। लेकिन उसके बाद जब मनुष्य आए
तो मनुष्य ने क्या किया, तो मनुष्य एक ज्ञानवान जीव है, नॉलेजेबल पर्सन है, तो उसने क्या किया कि अपने बौद्धिक अंश से ये सब नॉलेज धीरे धीरे ग्रैस्प करना शुरू किया। और जब से वो जन्मा है, वो पैदा जब नहीं हुआ था, तब से जब गर्भ में था, तब से उसने नॉलेज एक्वायर करना धीरे धीरे शुरू किया। पहले सुन के करता था, फिर जैसे बाहर निकला तो उसने ऑब्जर्व करके लेना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे थोड़ा समझना शुरू कर दिया, समझ के फिर धीरे धीरे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो जब वो जैसे अंदर था, छोटा था, और तब वहां से लेके जब बड़ा होता है, तब तक वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट अपनी बौद्धिक क्रियाओं से करता रहता है। So that's why he is called intelligent insects. तो ये जो सारे हमने जो वेदों के अंदर जो अलग अलग लॉस की जो बात की, वो तो मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले ही थे। तो ये जो नॉलेज था वो मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले था, यानी जो नॉलेज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम वेद बोलते हैं, वो मनुष्य की उत्पत्ति से पहले ही थे। लेकिन दोस्तों, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कई सारे जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल है, और उसके फेवर में हम लोग आज धीरे धीरे इतने इम्प्रेस हो गए हैं कि हम लोग भी उसकी ही भाषा बोलने लगे हैं। उन लोगों को इतनी प्राचीनता पे कहीं पे भी विश्वास नहीं है, व्हाट दे आर सेइंग। और हमारा जो स्पेशली अभी जो यंग कल्चर है ना, उसको तो ये सारी बातें, वेदों की बातें और ये सब अगर हम बात करेंगे ना, तो वो ऐसा लगेगा कि भाई हम कहीं कोई अलौकिक बात कर रहे हैं, मैजिक की बात कर रहे हैं, नथिंग इज फैक्ट, कहीं कोई चीज सही नहीं है, सच्ची नहीं है, ये सब माइथोलॉजी है। दोस्तों, माइथोलॉजी क्या है? वो एक बहुत छोटी सी बात है। माइथोलॉजी यानी मैं जब रास्ते से आ रहा हूं और मैंने एक हिरन को देखा। अब मैंने उस वक्त मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मैंने उसका फोटो एक्वायर नहीं किया, कैप्चर नहीं किया। तो मैंने आके आप लोगों से आके बात किया कि भाई नीलेश भाई, मैंने तो आज ऐसा हिरन देखा विच वॉज अ गोल्डन, उसका जो कलर था वो गोल्डन कलर था, और वो इस तरह से इतना सुंदर था। तो नीलेश भाई मुझे पूछेंगे कि भाई ये आपने जो देखा उसका कोई प्रूफ है आपके पास? आई विल से कि नो, मेरे पास शायद कोई उसका पिक्चर नहीं है, या मैं कहीं पे कोई किसी तरह से उसको रिवील नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हिरन नहीं था। हमारे पास जो चीज है, जो सत्य है, लेकिन उसको हम रिवील नहीं कर पाते हैं, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या तो उसको हम उसकी सत्यता साबित नहीं कर पाते हैं, उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। और माइथोलॉजी शब्द 1719 के अंदर एक ब्रिटिशर ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, और वो इसी वजह से किया था कि भाई दिस वन इज द माइथोलॉजी, जिसको हम सत्य है लेकिन हम उसको मान नहीं सकते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दैट वाज इन 1790। लेकिन 1790 के बाद आज तक आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, इन सब ने जो भी एक्सवेशन किए हैं या जो भी कुछ रिसर्च किया है, उसके बाद आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उसमें हम लोगों ने जितनी भी सारी चीजें जो ढूंढ निकाली है, अब हम धीरे धीरे रामायण महाभारत को सही है ऐसा प्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर नॉट द माइथोलॉजिकल बुक, या तो फिर फेक बुक। ओके, तो ये जो इंटेलेक्चुअल थे वो ऐसी कई बातें करते थे, और सबसे मजे की बात है कि इन लोगों ने सबसे एक बड़ा स्टेटमेंट क्या दे दिया कि भाई ये जो सारे वेद और जो चीजें हैं, उसके अंदर जो ऐतिहासिक नाम दिए हैं, या तो उसके अंदर जो ऐतिहासिक घटनाएं दी है, या तो फिर ज्योतिषीय घटना दी है, उसका संदर्भ उन लोगों ने जो दिया, उससे वो लोग क्या बोले कि मिस्र यानी इजिप्ट का जो कल्चर था, उससे ये काफी बाद में वेदों का कल्चर बना है। और जो इजिप्ट का कल्चर था वो हमसे वैदिक कल्चर से काफी पुराना है। इन लोगों ने क्या बताया कि भाई जो वैदिक कल्चर है दैट वाज जस्ट 2500 इयर्स बीसी, ईसु से 2500 साल पुराना ये कल्चर है। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने उसके ऊपर बाद में जो उनके साथ जो वाटाघाट किए या जो बातचीत की या जो भी चीजें बताई, उनमें 4000 ईस्वी सन पूर्व 4000 तक का वो समय निकलता है। ओके, तो ये सब जो आरोप हैं वो हम लोगों के ऊपर जो थोपे गए हैं, उसमें कितना दम है दोस्तों, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि वेदों के अंदर ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना या ज्योतिष संबंधी कोई घटनाओं का कोई उल्लेख ही नहीं है। और हम लोगों ने जो उसका अर्थघटन किया है, विद्वानों ने जो अर्थघटन किया है, दैट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। उसका कहीं कोई अर्थघटन जो है वो सही है ही नहीं।
उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको अपने फायदे के लिए या तो अपने कल्चर को बड़ा बनाने के लिए उसको अपने हिसाब से रजू कर दिया है। मैं ये आरएसएस या उन लोगों की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट, मैंने खुद ने भी ये सारी कई चीजें देखी हुई है और मैं खुद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट, आई एम अ जियोलॉजिस्ट, आई एम अ हिस्टोरियन। तो ये सारी चीजें मैंने खुद ने इन लोगों के साथ मिलके की हुई है। यहाँ पे जो द्वारका का एक्सवेशन हुआ था सूरत के पास, आई वॉज अ टीम मेंबर इन दैट टीम। तो मैं ये आर्कियोलॉजी के मेंबरों के साथ भी जुड़ा हुआ था और मैंने ये सारी चीजें पर्सनली देखी हुई है। और जो आगे मैं बताया गया कि भाई मैं 32 लैंग्वेजेस, नॉट 32, आई एम डिकोडिंग एंशिएंट 45 लैंग्वेजेस विच आर नॉट कंटिन्यूड एट प्रेजेंट, जिसके अंदर मायान भी आ जाती है, एंशिएंट हिब्रू भी आ जाती है। तो इन सब के रेफरेंसेस भी जो हैं उसको भी मैंने पढ़े हुए हैं और उनसे ये सारी जो चीजें हैं वो मैं निकाल रहा हूँ। तो आज हम क्या करेंगे कि ये सेमिनार के अंदर थोड़ा जो समय है हमारे पास, उसके अंदर इन लोगों के जो किताबें हैं, इन लोगों की जो बुक्स हैं, ये जो इजिप्शियन किताबें या तो अभी वेस्टर्न कल्चर की जो किताबें हैं, उसके अंदर क्या है वो ढूंढ निकालेंगे और उसमें से जो निकली हुई बातें हैं वो हम अभी देखेंगे। अब आते हैं तीसरे पार्ट में, इजिप्ट की सभ्यता। तो हम लोग दोस्तों पहले तो ये ढूंढेंगे कि इजिप्ट की सभ्यता कितनी पुरानी है। नॉर्मली हम लोगों को ये अभी मैंने जो आगे बताया कि भाई इजिप्ट की सभ्यता से वैदिक कल्चर काफी बाद में आया है, ऐसा जो इंटेलेक्चुअल्स ने बताया है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि भाई इजिप्ट की सभ्यता कितनी पुरानी है। ओके, सो लेट्स बिगिन द कल्चर ऑफ इजिप्ट एंड कल्चर ऑफ वैदिक एरा। अगेन आई एम गिविंग द रेफरेंस ऑफ हेम्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ये सर उन लोगों ने ही लिखा हुआ है, वेस्टर्न कल्चर का ये किताब है। सो दैट्स व्हाई आई एम रिवीलिंग दैट किताब, आई एम रिवीलिंग दैट बुक। मैं अपनी वेदों की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, वेदों की बात तो मैं बहुत बाद में करूंगा। पहले तो उन लोगों ने जो किया है, जो काम किया है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जो राइज ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की जो उत्पत्ति है उसके बारे में लिखा गया है कि दोस्तों इजिप्ट क्या था। तो कि इजिप्ट तो ओरिजिनली जो पूरा कल्चर था, पूरा जो कंट्री था ना, वो रेत का मैदान था, डेजर्ट था। और वहां पे जो नाइल नदी जो पसार होती है, वो नाइल नदी के आसपास का कुछ एरिया जो था, तो नाइल नदी में क्या होता था दोस्तों कि हर जून जुलाई महीने में बाढ़ आती थी। और जो बाढ़ आती थी उसकी वजह से ये जो सफेद लाल रेत थी, सफेद और लाल रेत थी, उसको लाल रेत की जमीन बोली जाती थी। तो ये जो लाल रेत थी उसके ऊपर धीरे धीरे काली मिट्टी, यानी जो हम उपजाऊ मिट्टी जिसको बोलते हैं, फलद्रुप जमीन, वो जमना शुरू हो गया। दोस्तों ये एक पुराना चित्र है जहां पे हमें दिखता है कि नाइल नदी में जो बाढ़ आई थी तो एंशिएंट इजिप्ट में पूरी ये पानी फैल गया था। अच्छा, अब ये जो पानी के जो बहाव से जो काली मिट्टी जमती थी, तो अलग अलग एरिया में उसका जो डेप्थ था या जो उसका जो समय था या जो उसकी कितनी जमती थी, तो एक सेंचुरी के अंदर अगर हम नेक्रोटिस उसकी अगर बात करें तो दैट वाज 4.7 इंच का ही ये थर जमता था। कैरो की अगर हम बात करें तो कैरो के अंदर क्या होता था कि ये एक सेंचुरी यानी 100 साल के अंदर 5.5 इंच की थर जमती थी काली मिट्टी की। एंशिएंट नेम एब्यूसिस, अभी आज जिसको हम एबाइडस बोलते हैं, एबाइडस के अंदर ये 5.1 इंच का थर रहता था और ये पूरा एक सेंचुरी के अंदर दोस्तों इतना थर जमता था। तो अगर हम बात करें कि ये जो थर जो जमता था उसके अंदर एक शताब्दी के अंदर यानी एक 100 सालों के अंदर अगर ये 5 इंच मिट्टी का अगर एक थर जमता है, तो अभी तक ये जो थर जमा है वो अलग अलग एरिया में 26 फीट से लेकर 62 फीट तक का ऐसा उपजाऊ मिट्टी का थर बनना शुरू हो गया है। ये थर बनने में नॉर्मली कितना टाइम लगेगा? तो क्या हम एक औसत लेते हैं कि भाई ये औसत अगर 35 फीट अगर भी हम गिने तो इतनी मोटाई जमने में 6000 साल लगेंगे अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन निकाले तो। और अगर ये 35 फीट का जो थर है उसको शुरुआत का जो वक्त था उसमें अगर मान लीजिए कि जमने में थोड़ा टाइम लगता है, शुरुआत के समय में अगर वो थोड़ी स्लो रेट से अगर इकट्ठा होता है तो भी क्या होता है कि ये 35 फीट से 62 फीट तक का जो जमना थर था उसको जमने में कम से कम 7000 साल से 15000 साल, यानी कि एक औसत हम अगर पकड़े उसको तो 10,000 साल तो हम ले ही सकते हैं कि 10,000 साल का एक औसत इसमें लगा है। आर्कियोलॉजी ने और जियोलॉजिस्ट ने इसको 10,000 साल एक्सेप्ट किया है कि 10,000 साल लगे हैं इतना थर जमने में। दैट इज द थिंग। अच्छा,
अब जैसे ये थर बनना शुरू होता है ना, वहां पे इंसान आके बसना शुरू नहीं करते हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे सूखता है, लोग आके उसको जांचते हैं, लोग उसके ऊपर धीरे धीरे पहले आके चेक करते हैं, अपने पशुधन को लेके यहाँ पे चारा करने के लिए आते हैं, और फिर धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। तो उसमें भी 1500 साल और लगे, यानी 10,000 साल में, 10,000 साल पहले तो इजिप्ट की जमीन जहाँ पे बस्ती बसनी थी वो जमीन बनना शुरू हुआ, और उसके 1500 साल बाद, यानी हम आज से 8,500 साल पहले यहाँ पे सभ्यता को बसना शुरू हुआ, कल्चर आके बसना शुरू हुआ, ऐसा जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने माना हुआ है। आई एम नॉट रिवीलिंग दैट थिंग, और ये हिस्टोरिकल किताब हेम्सवर्थ के अंदर ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने लिखी हुई है। हम लोग, हमारे वेद ने ये अभी बातें नहीं कन्फेस की है, वो लोग ही अभी ये सारी बातें कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो 10,000 साल पहले जो जमीन बनी, उसके ऊपर 8,500 साल पहले जो बस्ती आके बसना शुरू किया, तो देवर बुशमैन, एक जंगली शिकारी सभ्यता थी, और ये जो सभ्यता थी वो सभ्यता जंगली सभ्यता थी, यानी अनकल्चर्ड सभ्यता थी। अच्छा, अब दोस्तों समझना ये है कि ये अनकल्चर्ड जो कल्चर था, तो उनको धीरे धीरे कल्चर कैसे बनाया, उनको इंटेलेक्चुअल कैसे बनाया। तो क्या दोस्तों, हमारे यहाँ से हमारे व्यापारी लोग थे, आर्यन व्यापारी लोग थे, अत्रेय ऋषि जो थे उनके जो वंशज थे, देवर मर्चेंट एंड देवर नाविक, देवर सेलर। तो वो लोग यहाँ से वहां पे उस तरफ जाना शुरू किया, और उन लोगों ने क्या किया, तो कि धीरे धीरे वहां पे अपने व्यापार से इन लोगों को समझाना शुरू किया कि भाई ये चीज आप लीजिए तो इससे जीवन पद्धति के अंदर इतना फर्क आएगा, इतना आपका उत्कृष्ट होगा, आपको ये जो दिक्कतें आ रही हैं खाने पीने की, रहने की, तो उसमें धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहेगी। तो इससे क्या हुआ कि 500 साल ये लगे इस सभ्यता को कल्चर्ड बनाने में। तो 8,500 साल पहले जो अनकल्चर्ड सभ्यता थी उसको कल्चर्ड बनाने में 500 साल और लगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि बौद्धिक सभ्यता बनने में 8,000 साल लगे, यानी आज से 8,000 साल पहले ये कल्चर्ड सभ्यता डेवलप हुई। ओके, अब यही रेफरेंस हम एक दूसरे किताब से भी लेते हैं, दूसरी तरह से भी लेते हैं कि उनका जो लिखित इतिहास है, अगेन उनका जो लिखित इतिहास है, नॉट अवर, उनका जो लिखित इतिहास है वो 5,500 साल पुराना है। वॉइस नानो जो मम्मी थोड़ा भाई कोई नो वॉइस आवे छे प्लीज। 5,500 साल पुराना उनका ये लिखित इतिहास है, और वो उनके जो प्रथम राजवंश है उससे पता चलता है। अच्छा, इसका कंफर्मेशन भी हमको उनके 6ठे, 12वें और 18वें राजवंश के साथ हम लोगों को मिला है, और उसके जो ऋतुकाल है यानी सीजन्स उससे, और सीरियस करके जो किंग थे उसके उदय काल से भी हम लोगों को, इन लोगों, ये सारा जो हमारा लिखित इतिहास इन लोगों का था उसको जब हम लोगों ने मिलाया, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने जब मिलाया, तो ये सारा इतिहास हमें उसके साथ रिफर होता है, यानी मिलता जुलता है, और ये उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो लिखित इतिहास था वो 5,500 ईसा पूर्व का था, यानी ईसु के पहले 5,500 साल, और ईसा के बाद अभी जो हुआ है दैट इज 2020। तो टोटल मिलाया जाए तो 7,520 साल पुराना है, जिसको हम प्लस माइनस अगर गिन सकते हैं तो 7,000 से 8,000 साल पुराना है। जो आगे हेम्सवर्थ ने जो लिखा है उसके साथ ये बौद्धिक सभ्यता और लिखित सभ्यता 8,000 साल पुरानी है, वो हम लोगों को इससे पता चलता है। दैट्स इट। यानी हम ये नहीं बताते हैं, लेकिन उनकी जो किताबें हैं, उनका जो हिस्ट्री है, उनका जो जियोलॉजी है, उनका जो आर्कियोलॉजी है, वही ये सारी चीजें बताता है कि उनका जो कल्चर है दैट इज 8,000 ईयर ओल्ड, उससे पुराना नहीं है। ओके दोस्तों, अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारा वैदिक सभ्यता है वो तो इनसे कई सारी पुरानी है, लेकिन वो कैसे, कितनी पुरानी है और वो किस तरह से हम करते हैं, तो हम पहले हमारे वेदों का रेफरेंस नहीं लेंगे, हम लोग उनका ही रेफरेंस लेंगे अभी भी, और उनके रेफरेंस से ही आज हम पहले ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो वैदिक सभ्यता थी, या जो हमारी नहीं, ये यूनिवर्सल वैदिक सभ्यता थी, जहां पे पूरे विश्व की शांति के बारे में लिखा गया है, नॉट रिगार्डिंग द इंडिया। इंडिया या भारत, उस वक्त भारत वर्ष, भारत खंड और भारत भूमि यानी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी की बात की है, वो उसमें इजिप्ट भी आ जाता है, मिश्रा आ जाता है, तो वो उतना पुराना नहीं है, हमारी वैदिक सभ्यता जितना पुराना नहीं है।
हमने देखा कि भी 8000 साल पुराना ये वैदिक कल्चर है, ठीक है। अब एक रेफरेंस यूनान राजदूत जो था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में चंद्रगुप्त के दरबार में आया हुआ था और उसने मौर्य पुस्तकालय से एक वंशावली प्राप्त की और उस वंशावली को उसने उसके बेस पे उसने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। हमारी किताब नहीं है, हमारे रेफरेंस से यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा हुआ जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। उसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, अपना वेदों का रेफरेंस नहीं है दोस्तों, वापिस समझना। तो उसमें उसने क्या लिखा है और उसी का रेफरेंस देके बाल गंगाधर तिलक जी ने भी अपनी किताब ओरायन में ये रेफरेंस दिया हुआ है, जो हम देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जब इंडिया में आया था तो उस वक्त इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, यानी गंधार पाटलिपुत्र जिसका कैपिटल था उसमें उससे पहले जितने भी राजा थे ऐसे 154 किंग्स थे। उसकी गणना, उसकी कैलकुलेशन दी हुई है कि जिसका समय 6451 साल और 3 महीने। दोस्तों देखिए 6451 साल और 3 महीने यानी कितना विस्तृत, कितना डिटेल में है। हम लोग एक रेफरेंस क्या लेते हैं कि भाई एक राजा का जो समय है वो करीब हम 20 से 25 साल लेते हैं और उस हिसाब से एजिंग प्रोसेस निकालते हैं और वो एजिंग प्रोसेस निकाल के हम ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसका समय अप्रोक्सीमेटली इतना रहेगा। लेकिन इस किताब के अंदर महीनों के साथ, और आपको शायद नहीं पता है, दिन के भी इसमें रेफरेंस हैं कि इस तारीख को इस दिन के अंदर ये राजा का मृत्यु हुआ और उसके बाद ये राजा आया, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो 6451 साल और 3 मास पहले 154 राजा और थे और वही बात ओरायन में भी ये लिखा हुआ है। अच्छा, ओरायन में तो एक बात बाल गंगाधर तिलक जी ने एक और भी बताई कि इस समय तक ये पूरे एरिया के अंदर यानी पाटलिपुत्र के अंदर, गांधार के अंदर 3 बार प्रजासत्ताक राज्य स्थापित हो चुका था और ये उसका रेफरेंस है दोस्तों, जिसके अंदर अलेक्जेंडर टू कैंड्रोगुप्स यानी चंद्रगुप्त, जिसको सैंड्रोगिजिप्स भी लिखा हुआ है। अच्छा, गांधार के बारे में उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है दैट वाज गेंजेराइट्स। पाटलिपुत्र के बारे में जो शब्द यूज किया है दैट वाज पोलीबोथरा। नाउ इट इज इन पटना, इट इज पटना इन बिहार। तो ये जो सारे नाम है, अच्छा डायनोसियस वहां से लेके चंद्रगुप्त तक के जो राजा, डायनोसियस यानी दुष्यंत राजा, दुष्यंत राजा से, महाभारत से पहले जो दुष्यंत राजा थे, शकुंतला और दुष्यंत वाले दुष्यंत की ही दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, वहां से लेके चंद्रगुप्त तक का जो पीरियड था दैट वाज 6451 ईयर, 6451 साल पुराना है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो कि चंद्रगुप्त कब हुआ था, तो कि ईस्वी सन पूर्व 321 में। उसके बाद अभी कितने साल हुए, तो कि 2020, यानी चंद्रगुप्त से अभी तक का जो टोटल समय है दैट इज 2341 ईयर। और मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के वक्त में जो टाइम दिया है उससे पहले का, जिसमें ओरायन में 153 राजा लिखे हैं, मेगास्थनीज ने अपनी किताब के अंदर 154 राजा लिखे हैं, लेकिन अवधि दोनों में सेम है, समय दोनों में सेम है, 6451 साल और 3 महीने। यानी अगर हम दोनों को मिलाए तो करीब करीब 8792 साल, 8792 ईयर्स होते हैं, जिसको हम अंदाजन 9000 साल पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों इजिप्ट की सभ्यता से 1000 साल तो ऑलरेडी ये पुराना हो ही चुका है। अच्छा, एक दूसरा अगर हम रेफरेंस लिखें तो कश्मीर में दबिस्तान करके एक लेख हमें मिला था जिसके अंदर ये रेफरेंस दिया गया है। ये दबिस्तान दोस्तों आज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और वहां पे जो बैक्ट्रिया करके जो किंगडम था, वहां पे जो शासन था वो हिंदू राजाओं का था और उनकी नामावली भी ये दबिस्तान के अंदर लिखी हुई है। इसमें महाभारत से सिकंदर तक, महाभारत से सिकंदर तक 5600 साल, महाभारत से करीब 1500 साल पहले दुष्यंत थे, तो दैट वाज द थिंग। 1000 से 1500 साल पहले का हम दुष्यंत का अवधि ले सकते हैं। यहाँ पे महाभारत से सिकंदर तक का 5600 साल की जो अवधि है, समय है, वो इसमें दिखाई गई है। दिस इज सेकंड रेफरेंस। ये सारे किताबों में दिए गए रेफरेंसेस हैं और ये सारे वेस्टर्न कल्चर ने एडप्ट किए हुए हैं। और हम जानते हैं कि महाभारत से पहले रामायण थी, रामायण के जो राजा थे वो राम थे और राम इक्ष्वाकु के 64वें वंशज थे, 64, यानी इससे पहले
64 किंग और थे राम से पहले, और जो पहले थे वो इक्ष्वाकु थे, और इक्ष्वाकु के जो फादर थे दैट वाज मनु। तो ये तो दोस्तों हमारे पास कितनी पुरानी है वो हम अब समझ सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके वॉल्यूम 2 पेज नंबर 237 टू 38 के अंदर जेम्स मिल ने भी ये लिखा है कि बैक्ट्रिया के जो राजा थे वो सब हिंदू राजा थे, यानी मिश्र सभ्यता थी वो इससे पहले हिंदुओं के अंडर में थी, हिंदू लोग इसको चलाते थे और हिंदू लोगों ने ही इनको सभ्यता दी हुई है, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है, हमारी किताब नहीं, ऑफ ब्रिटिश राइटर इज जेम्स मिल, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 237 टू 38। तो मिश्र का जो प्रथम राजवंश जिसकी हम लिखित इतिहास के बारे में बात करते हैं कि मिश्र का इतिहास हमको लिखित इतिहास प्रथम राजवंश से जो मिला, उसका जो कल्चर, उसका जो टाइम है, और वैदिक सभ्यता का जो हमने आखिरी यानी चंद्रगुप्त का जो बात किया, दैट वाज जो चंद्रगुप्त गुप्त वंश था वो वैदिक सभ्यता का आखिरी राजवंश था। तो वो जो आखिरी राजवंश था और मिश्र का जो प्रथम राजवंश था, तो वो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जब यहाँ पे प्रथम राजवंश की शुरुआत थी तब तो हमारे वैदिक सभ्यता का एंड होने की तैयारी थी, कल्चर खत्म होने की तैयारी में था। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ दोस्तों कि मेगास्थनीज ने जो हमारे वंशावली जो बात की है, वंशावली की बात की है, उसमें हम लोगों ने लिखा है कि भाई 3 बार, ओरायन में जो लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी ने कि भाई 3 बार प्रजासत्ताक शासन यहाँ पे ये प्रणाली स्थापित हो चुकी थी। तो वैदिक समय की सभ्यता कितनी उत्कृष्ट थी, कितनी उच्च थी, जबकि हमारे जो अभी के विद्वान लोग हैं वो मिश्र की सभ्यता को बहुत अच्छा स्थान देते हैं, उनको बहुत उच्ची कक्षा पे रखते हैं कि भाई उनके पास जो साइंस था, उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत हाई लेवल की थी, एक्सेप्ट था उनके पास नॉलेज बहुत अच्छी तरह से। लेकिन दोस्तों ये कहाँ से आया अब वो हम देखेंगे, हमारे पास 5 मिनट हैं अभी। पिरामिड अगर हम देखें, हम उनको क्यों इतना मान देते हैं, तो कि उनका जो कल्चर है वो पिरामिड कल्चर, और पिरामिड के अंदर रखे गए मम्मी या मुर्दों की वजह से हम उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, पिरामिड की वजह से रिस्पेक्ट देते हैं। तो दोस्तों ये जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता ने इसको डेवलप करने में बहुत हेल्प की थी। सबसे ज्यादा ये जो कल्चर को, ये पिरामिड को और इनके अंदर जो रखे गए मम्मी को कैसे रखना है, उसका जो नॉलेज दिया था वो हमारे यहाँ से जो अत्रेय करके जो वंशज थे, अत्रि ऋषि के जो वंशज थे, वो लोग जब यहाँ से नदी के अंदर बहते हुए नाव बना के नाइल नदी के अंदर गए और उनको जब ये पूरा सभ्य बनाया तब हम लोगों को पता चला था। तो दोस्तों ये क्या है, तो कि मिस्र के ऊपर अंदर ये मम्मी जो है उसके अंदर हम लोगों ने ये आगे एक चित्र देखा कि इसके अंदर नीला रंग है, देखिए सर राइट साइड पे जो पिक्चर है वो नीला रंग है। तो मम्मी के ऊपर ये नीला जो रंग है वो इंडिगो था, और ये जो मम्मी है जिसको हमने जिस ताबूत में रखा हुआ है वो इमली के लकड़े से बना हुआ है। अच्छा, भारत के अलावा ये इंडिको और इमली का जो लकड़ा, इमली जो है उसको हम टेमरिन कहते हैं, यानी तमरे हिंद। तमरे हिंद का जो अपभ्रंश है वो टेमरिंड हो गया। तो ये इंडिगो और टेमरिन, ये दोनों चीजें पूरे विश्व में भारत के अलावा और कहीं पे भी नहीं उगती थी, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी। तो दोस्तों ये मिश्र तक गई कहाँ पे, कहाँ से, तो कि नाइल नदी से। जब उन लोगों को ये जो व्यापार हम लोग करते थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने उनको जब देना शुरू किया तब उनको पता चला कि भाई इन सब चीजों से हम अपने राजाओं को बचा सकते हैं, हम अपने राजाओं को शायद भविष्य में जिंदा कर सकेंगे। बाकी किसी और कल्चर में पुनर्जन्म की बात ही नहीं है एक्सेप्ट आवर कल्चर। तो उन्होंने धीरे धीरे हमारा जो वैदिक कल्चर है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, नील नदी, ये जो जहाँ पे हम जिस नदी से हम पसार होते थे और ये व्यापार करना शुरू किया, तब तो दोस्तों उन लोगों को अपने नदी का नाम तक पता नहीं था। तो हम लोगों ने ये नील नदी का नाम नील दिया था, और हमने जब ये, क्योंकि हम नीला रंग इससे व्यापार करते थे, तो इस वजह से इस नदी का नाम नील हो गया। अगर हम लिंग्विस्टिक बात करें तो ग्रीक और रोमन लोग जब आए तो उन्होंने नील को नाइल बोलना शुरू कर दिया, उनका जो उच्चार था वो, और उनका जो रूट देखे, इजिप्शियन या हिब्रू का जो रूट है उनका, उसमें कहीं पे भी नाइल शब्द का कोई रूट नहीं है। दिस रूट इज बिलोंग्स टू द संस्कृत वर्ड नील। नील यानी इसका शब्द, इसका मीनिंग होता है ब्लू कलर, भूरा रंग।
अच्छा, ये बात भी हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात भी ब्रिटिश वॉल्यूम, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटिश वॉल्यूम, पेज वॉल्यूम 7 पेज के अंदर ये अलग अलग इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये सभ्यता को हमने नामकरण दिया, इनकी जंगली सभ्यता को हम लोगों ने व्यापारी बनाया और इनको वेल कल्चर्ड बनाया। तो मिश्र की सभ्यता के तुलना में दोस्तों हमारा कल्चर कितना पुराना था, दैट वी नो नाउ, कि हमारा सभ्यता इससे कई पुरानी थी। और इससे ये हमने अभी तक उनके ही टेक्सचर्स से बात की है, अभी तक हमने वेदों की बात तो शुरू ही नहीं की है। हो सकता है अगर हमारे पास वक्त रहेगा, समय रहेगा, और अगर ये लॉकडाउन हमें और समय देगा तो बाय जूम हम लोग आपके साथ ये और चीजें लेके आएंगे। नहीं मिलता है तो जहां तक मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, पर्सनली भी एक मीटिंग्स करके या सेमिनार्स करके आपके तक ऐसी कई सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और एक जो लास्ट बात जो मैंने पहले बताई थी कि ये ડોક્ટર सारी जो મિતુલભાઈ, वैदिक जीवन शैली है આપણી उसको પાસે સમય, ડોક્ટર મિતુલભાઈ આપણી પાસે સમય છે, હા, એટલે તમને જે સમય જોઈએ તે પ્રમાણે તમે વાત કરજો. ના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ રહેશે આપણી પાસે થોડો ઘણો. ઓકે. એટલે એક આ પેલું જીવન શૈલીની જે એક વાત કરું છું તે એક લોકોને થોડુંક સમજાવી દઉં, જસ્ટ 1 or 2 મિનિટ, ધેટ્સ ઇટ. ओके. मनुस्मृति के अंदर अध्याय 4 मंत्र 18 के अंदर हम लोगों को वैदिक जीवन शैली किस तरह से होनी चाहिए उसके बारे में लिखा गया है दोस्तों. इसके अलावा भगवान शंकर ने भी हमें एक वर्ड दिया है. उन्होंने 4 किस्सों में हमारे लाइफ को सेग्रीगेट किया है और उसमें से उन्होंने एक वर्ड निकाला है. शिव आगम के अंदर ये वर्ड है, दैट इज कॉल्ड सेरा. सेरा मीन्स लाइफस्टाइल. संस्कृत के अंदर सेरा का जो मीनिंग है तो दैट इज लाइफस्टाइल, कि हमें लाइफस्टाइल कैसे जीनी चाहिए. तो उन्होंने जो बताया है वो सनातन है. सनातन लाइफस्टाइल यानी क्या होता है, तो कि भाई आप अपनी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं वो पहले जिस तरह से प्राचीन पास्ट में आप जिस तरह से जीते थे या प्रेजेंट में जिस तरह से जीते हैं या फ्यूचर में आप जिस तरह से जिएंगे, दैट इज नॉट द थिंग. उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है. उसके अंदर आप कैसे आपकी ये जो वैदिक टेक्नोलॉजी है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज द थिंग. और हम लोगों ने ये कोविड-19 के वक्त में ये देख ही लिया कि हम लोग सब के सब हम निवृत्त जीवन शैली में आ गए हैं. हम रिटायर्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया है. कहीं किसी के पास कोई एक्टिविटी, सबने अपने अपने, यहाँ ये तो मैंने जो आगे बताया कि जिसके पास अपने शौक थे, जिसके पास ये नॉलेज था, जिसके पास अपनी पसंदगी थी, उन्होंने क्या किया तो कि भाई ये बोरिंगनेस है या जो ये स्ट्रेस है, ये फ्रस्ट्रेशन है, उससे वो धीरे धीरे उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया. लेकिन जिनके पास नहीं है, व्हाट दे डिड, तो कि वो लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए. वो लोगों ने अपना अपना वो गलत थिंकिंग पे चले गए. अच्छा, जो लोगों ने अपना शौक कंप्लीट किया उन लोगों को धीरे धीरे मैंने आगे बताया कि भाई एकाग्रता या तो फिर एक सेटिस्फैक्शन अपने लाइफ में अब मिलना शुरू हो गया है. कहीं ना कहीं हम लोग ये एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ये जो हम लाइफस्टाइल अभी जीते हैं, हम इससे एटलीस्ट हमारे जो शौक थे कम से कम वो तो कंप्लीट कर ही पा रहे हैं. तो ये लाइफस्टाइल भी गलत नहीं है. लेकिन वापस ये 15 दिन खत्म हो जाएंगे तो हम वापस स्ट्रेसफुल लाइफ में चले जाएंगे. तो क्या तरीका क्या है, तो कि ये जो शंकर भगवान ने हमें जो जीवन शैली बताई है, वैदिक जीवन शैली, वो हम लोग समय के जाने के बाद भी हम लोग उस हिसाब से उसमें चले जाएंगे. यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हम निवृत्त थे तो भी खुश नहीं है. हमको जब प्रवृत्ति मिलती है एट दैट टाइम वी आर ऑल्सो नॉट हैप्पी. हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है. तो निवृत्ति से भी बोरिंग आ जाता है, बोरिंगनेस आ जाता है, प्रवृत्ति से भी आ जाता है. तो अब करे तो क्या करे. जब दोस्तों काम शुरू हो जाएगा ना, तब वापस हम लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि यार कहाँ हम लोगों के पास अच्छी खासी लाइफस्टाइल थी, हम अपने शौक पूरे कर पा रहे थे, वापस ये स्ट्रेसफुल लाइफ, वापस वो भागदौड़ वाली जिंदगी, ये सब शुरू हो गया है. और दोस्तों खास करके हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, जो टीनेज और यंगस्टर्स, उन लोगों में तो हम लोगों ने ये देखा है कि जो मीडिया और जो गैजेट्स हम लोगों ने उनको जो दिए हैं, उन्होंने तो ये लाइफस्टाइल, हम लोग ने ये लाइफस्टाइल पहले देखी थी. प्लेग के वक्त भी हम लोगों ने ऐसी लाइफस्टाइल देखी है. तो ये लोगों ने तो वो लाइफस्टाइल देखी ही नहीं है. तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. वो लोग इतने बोर हो रहे हैं इन लाइफस्टाइल से कि धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीजें बढ़ने लगी है. तो इसका तरीका क्या है, तो कि आधुनिक जो लाइफस्टाइल है, अभी की जो लाइफस्टाइल है, जिसके अंदर हम लोग जो बोलते हैं कि हमारे पास समृद्धि है, सगवड़ है,
यानी जो टेक्नोलॉजी है, उन सब के साथ अगर हम इसको मिलाए तो कैसे मिलाए? तो कि ऐसी एजुकेशनल मेथड है कि जिसके अंदर हमको जीने में मजा आए, हम वो रूटीन लाइफस्टाइल के साथ हमारी ये लाइफस्टाइल भी वापस कोऑर्डिनेट कर सके, जिससे हमें स्फूर्ति मिले, ताजगी मिले, एफिशिएंसी बढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सकारात्मकता की बात हम लोग बहुत करते हैं। ये लोग जो रेकी वाले जो बात करते हैं या सीक्रेट वाले बात करते हैं, सब 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 मिला के सकारात्मकता यानी पॉजिटिव एटीट्यूड की जो बात करते हैं, लेकिन वापस जब स्ट्रेसफुल लाइफ आ जाती है ना, तो सर ये जो हमारी जो पॉजिटिवनेस है ना, वो कहाँ गायब हो जाती है ना, वो ढूंढने से भी नहीं मिलती है। तो हाउ कैन यू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल अलोंग विथ अवर स्ट्रेसफुल लाइफ? भाग दौड़ वाली जिंदगी में भी हम ये कैसे जिए जिससे मन तंदुरुस्त बने, और मन तंदुरुस्त रहेगा तो दोस्तों तन अपने आप तंदुरुस्त रहेगा। जो हमें इससे पहले जो फर्स्ट लाइफ थी कोरोना से पहले, कोरोना में हम लोग सेकंड लाइफ जीते हैं, और कोरोना जैसे खत्म होगा ना तो हम लोग तीसरी जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। दैट विल बी द थर्ड वर्ल्ड वॉर। वो तीसरा विश्व युद्ध इसलिए बोला जाएगा कि जिसको हमें कोरोना के साथ या वो जीवन शैली के साथ वापिस हमारे लाइफ को जो तालमेल बैठाना है ना, that is again a war. So that's why I am saying it as a third world war. पूरी दुनिया को ये जीना पड़ेगा एक अलग तरीके से। तो इन सब में जो वैदिक जीवन शैली है वो अगर हम इस्तेमाल करेंगे या वो अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे, अब ये क्वेश्चन वही आता है कि ये लाइफस्टाइल के साथ सर वो जीना कतई संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। कर सकते हैं। तो दोस्तों एक कोर्स हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। ये कोर्स के अंदर अभी फिलहाल हम लोग जो घर पे रहते हैं तो उसका नाम है गृहस्थ जीवन, गृहस्थाचार्य, गृहस्थ आश्रम। तो उसके अंदर ये कोर्स हम लोगों ने ये डिफाइन किया कि 15 दिन में जब आप घर पे रहते हैं तो आप किस तरह से घर पे रहते हैं, किस तरह से लाइफस्टाइल जिएंगे जो आपके आने वाले जीवन में। दोस्तों ये जब शुरू हो जाएगा तो जब शुरू होगा तब हम ये भी देखेंगे भी जब जॉब शुरू होती है तो जॉब जाने वाले लोग किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिजनेसमैन किसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाउसवाइफ किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे एक जीमेल दिया हुआ है, मेल आईडी दिया हुआ है। आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स। ये सारी जो चीजें मैं जो कर रहा हूँ दैट इज नॉट फॉर माई सेक, आई एम एसोसिएटेड विद दैट काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पे मुझे ये सारी चीजें अपने लिए नहीं करनी है, लेकिन एक नॉमिनल फीस इसलिए रखी है कि टाइम पास करने के लिए किसी को नहीं आना है। जिसको लाइफ में वाकई में ये चीजों की जरूरत है, जिसको वाकई में इम्प्लीमेंट करना है, दे कैन ज्वाइन। और कुछ मेंबर्स इसमें ज्वाइन हो चुके हैं हमारे पास 1 तारीख से, 2 तारीख से, 3 तारीख से। यू कैन ज्वाइन अस एनी टाइम, ये कर सकते हैं। और यहाँ से मैं अपना आज का जो ये सेमिनार है वो यहाँ से मेरा जो बोलना है वो स्टॉप करता हूँ। नाउ व्हाटएवर द क्वेश्चन यू हैव दैट यू कैन रिवील, यू कैन आस्क मी। ओके नीलेश भाई सबको अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच ડોક્ટર મિતુલ ભાઈ। આપણે બધાને અનમ્યુટ કરીએ એની પહેલા મારે બે ત્રણ વાત કેવી છે। આપણી સાથે બીજા ઘણા બધા મહાનુભાવો પણ જોડાયા છે આજે, તે લોકોની હાજરીની હું નોંધ લેવા માંગુ છું। ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ નિમિષભાઈ મહેતા આપણી સાથે છે, સેનેટના સભ્ય સાઉથ વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સંજયભાઈ લાપસીવાલા પણ આપણી સાથે છે। આઈસીટીએના ઓનરરી સેક્રેટરી શ્રી દિલીપભાઈ પટેલ પણ આપણી સાથે છે। નમસ્તે આપણી સાથે છે, મયંકભાઈ ત્રિવેદી પણ સાથે છે, હિરેનભાઈ એન્જિનિયર પણ સાથે છે અને હિતેશભાઈ પટેલ પણ આપણી સાથે છે। આ ઉપરાંત જે આગળ મેં નામ કહ્યા તે બધા મહાનુભાવો પણ આપણી સાથે ઉપસ્થિત જ છે। હું એક રિક્વેસ્ટ એવી કરું છું કે આપણે 1-2 જણના પ્રતિભાવ પણ સાથે લઈએ અને પછી ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન પણ કરીએ આપણે। તો સૌથી પહેલા આપણી વચ્ચે જે શરૂ ઉપસ્થિત કરીએ છે, પહેલા એક બીજી વાત કરું છું। હા બોલો મિતુલભાઈ। એક મહાનુભાવની હું પણ વાત કરું છું। આજે પહેલી વખત એવું છે કે ઓનલાઈન ની અંદર આ સેમિનાર ની અંદર મારા ફાધર પણ મને જોઈ રહેલા છે। અરે વાહ વાહ વાહ, વેરી ગુડ યાર ખૂબ જ સરસ, ખૂબ જ સરસ। he is not the man of technology, પણ છતાં પણ આજે આપણે આ પ્રયત્ન કરીને જોઈન થયેલા છે। અચ્છા અચ્છા, વેલકમ સર। મિતુલભાઈ અમારા બધા તરફથી તમારા પિતાશ્રીનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધી સંસ્થાઓ તરફથી। હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, આપણી સાથે રોટેરિયન પ્રકાશભાઈ પટેલ હાજર છે। તો પ્રકાશભાઈ હું આપને અનમ્યુટ કરું છું
તેઓ શહેરના જાણીતા બિલ્ડર પણ છે અને ઘણી બધી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ સાથે તેઓ સંકળાયેલા છે. હમણાં રોટરી ક્લબ થકી લગભગ રોજના 2-3 હજાર માણસોને જમવાનું જ્યારથી લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારથી પૂરું પાડવામાં આવે છે. તેમાં એમનો મોટો ફાળો છે. તો પ્રકાશભાઈ, આપને 2 શબ્દ કહેવા માટે વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર નિલેશભાઈ. આજે જે વક્તાને સાંભળવાનો લાભ મળ્યો છે એ મારા હિસાબે મારી લાઈફમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં વૈદિકને આ બધી કલ્ચર બાબતે મને થોડી માહિતી મળી છે અને મને એમ લાગે છે કે ભવિષ્યમાં આપણે પણ એ લાઈફસ્ટાઈલ થોડી અપનાવીશું તો લોંગ રનમાં આપણને આવી નવી મહામારીઓ આવવાની જ છે. કારણ કે મનુષ્ય એવું પ્રાણી છે કે જે નવા તોફાનો ઊભું કરવાનું જ છે. તો આપણે આ શીખીશું તો આપણા બધાના લાભમાં રહેશે ને હિતમાં રહેશે. હું મિતુલભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમના વક્તવ્યથી અમને આજે ઘણું બધું જાણવાનો લાભ મળ્યો છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રકાશભાઈ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારી સાથે બધા સેમિનારમાં આપ ભાગ લેતા રહેશો. હવે હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, આપણી સાથે પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નિશિકાંતભાઈ મહેતા, નિશિકાંતભાઈ મિસ્ત્રી હાજર છે. તો નિશિકાંતભાઈને 2 શબ્દ કહેવા માટે વિનંતી. મુકેશભાઈ, આપ તેમને અનમ્યુટ કરી શકશો? નિશિકાંતભાઈ મિસ્ત્રી. હેલો. હા નિશિકાંતભાઈ, સંભળાય છે? હા. નિલેશભાઈ, ખરેખર બીજો સેમિનાર પણ બહુ સરસ. તમારો વિડિયો પણ ઓન કરી શકો તો કરી દેજો નિશિકાંતભાઈ. ઓકે. એકચ્યુઅલી હું લેપટોપ પર છું એટલે મને ખ્યાલ નથી આવતો થોડોક, એટલે હા, કઈ વાંધો નહીં, પ્લીઝ ગો ઓન. ઓકે. ખરેખર આજનો પણ સેમિનાર ખૂબ સરસ રહ્યો. પહેલાના સેમિનારના કરતા પણ વધારે સરસ છે ને પિરામિડનો વિષયનો એમને એક મેં સવાલ પણ ત્યારે પૂછ્યો, એટલે એમને પૂછ્યો તો તેનું હવે થોડું ઘણું અંદર આવી જશે એવું લાગે છે. એટલે આ રીતના સેમિનારો થતા રહે તે માટે જ આપણે આગળ વધતા રહીએ તો વધારે સારું રહેશે. જીવનશૈલી માટેની જે એમની જે વસ્તુ છે તે ખરેખર સરસ છે. એટલે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યુ એન્ડ એવરીવન. થેન્ક યુ. ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ નિશિકાંતભાઈ. હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, આપણી સાથે ઓનરરી સેક્રેટરી દિલીપભાઈ પટેલ પણ હાજર છે. દિલીપભાઈ, 2 શબ્દ કીધો, ત્યાર પછી વિકેશભાઈ વિમાવાલા, આપણા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ, તેમને પણ આપણે અનમ્યુટ કરીશું. એમના મોડે પણ 2 શબ્દ સાંભળીશું અને ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન લઈને બીજા પ્રતિભાવ લઈશું. દિલીપભાઈ પટેલ, પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. મુકેશભાઈ, એમને તમે અનમ્યુટ કરી શકશો? હા, પણ મારે જરાક શોધવા પડશે એમને. લેટ મી ટ્રાય. કંઈક ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ આવી છે. વિકેશભાઈ વિમાવાલા, દિલીપભાઈ છે સાહેબ, એમને અનમ્યુટ કર્યા મેં દિલીપભાઈને. હા, તો દિલીપભાઈ 2 શબ્દ કહેજો આપના તરફથી. આઈ થિંક સર હી ઇઝ નોટ ધેર. આપણે વિકેશભાઈને, હા, વિકેશભાઈને તો રિક્વેસ્ટ કરીએ. દિલીપભાઈનો મેસેજ આવી ગયો, કાન્ટ ટોક. ઓકે. મિતુલભાઈ, ખૂબ સરસ. એકચ્યુઅલી અત્યારે ફિઝિકલ અને અત્યારે લાઈફસ્ટાઈલને સાથે સાથે આપણે ઘણા વખત એવું વિચારતા કે આ ટાઈપની એ રીતનું હોવું જોઈએ, પણ એનીવે તમારા તરફથી ફીડબેક વોઝ એક્સલન્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ નિલેશ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ વિકેશભાઈ. આ તમે જ છો કે લોકડાઉનની અસર છે કે શું? વેલકમ વેલકમ. બસ બધા સેમિનારમાં આવતા રહો વિકેશ. હવે આપણે મુકેશભાઈ, જે લોકો હાથ રેઝ કરે અથવા ચેટમાં ક્વેશ્ચન્સ કરતા હોય ને, તો આપણે પ્લીઝ અલાઉ ધેમ ટુ ફોર ઇન્ટરેક્શન વિથ ડોક્ટર મિતુલભાઈ ત્રિવેદી. સર, હું એક થોડું કહેવા માંગુ છું. હેલો. હા, કોણ? ધરમ સર. હા, બોલો ધરમ, બોલો. એક સંસ્કૃતનો શ્લોક છે, હંસો શુક્લઃ બકો શુક્લઃ કો ભેદો બક હંસે निरक्षीर विवेके तु हंसो हंस बको बका. एना मतलब है कि हंस भी सफेद रंग का होता है, बगुला भी सफेद रंग का होता है, फिर भी दोनों में भेद क्या है? जिसमें दूध और पानी अलग कर देने का विवेक होता है वही हंस होता है, और बगुला विवेकहीन बगुला बगुला ही होता है. तो आज जे आपणी वच्चे मितुलभाई जे ज्ञान पीरस्યું છે ને, એનાથી આ 100% નો ભેદ આપણે પારખી શકીએ. અરે, બહુ મોટી વાત કરી ગયા તમે. ચાલો, બહુ સામાન્ય માણસો સાહેબ.
થેન્ક યુ સર. વેરી ટ્રુ ધરમ. હવે ધરમ અને મૃગેશ તમે જ જરાક જે લોકોએ હેન્ડ રેઝ કર્યા છે તો પ્લીઝ allow them to interact, and if other people also wishes to ask question they can type in chat, and the coordinator and the host will allow you to interact with Dr. Mitulbhai Trivedi. Please go on, Mrugesh and Dharam. યસ સર. રાજભાઈ તમે જે મેસેજ મૂકેલો છે વોટ્સએપ ગ્રુપ ક્રિએટ કરવાનો, મેં મારો નંબર ને બધું આપેલું છે, તમે મારી જોડે જોડાઈ શકો છો. વૈદિક વિલેજ જે એક્ટિવિટી મેં જે રજૂઆત કરેલી છે એમાં તમે જોડાઈ શકો છો. ઇટ ઇઝ ઓપન ફોર એવરીબડી. Right, sir. So nice of you. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Now another question is. હેલો. જબીરભાઈ તમારો સવાલ છે કે 5000 વર્ષ જૂની ઇજિપ્શિયન સંસ્કૃતિ, મેં ઇજિપ્શિયન સંસ્કૃતિ 8000 સાલ જૂની કીધેલી છે અને વૈદિક કલ્ચર એના કરતા ઘણું જૂનું કહેલું છે અત્યારથી. અને એની ઉપરના આર્કિયોલોજીકલ અને જીઓલોજીકલ પુરાવાઓ જે પુસ્તકોની અંદર જે રેફરન્સ આપેલા છે એ હું ઓલરેડી રજૂ કરી ચૂકેલો છું સાહેબ. છતાંય તમને પર્સનલી જો કંઈક જાણવું હોય તો યુ કેન કોલ મી ઓન માય નંબર. જે 2 નંબર આપેલા તે મારા પોતાના જ છે સર. Thank you, sir. I think Bharatbhai Bhavsar sahib, please unmute yourself. હેલો, ગુડ આફ્ટરનૂન સર. ગુડ આફ્ટરનૂન. હા, જો લાસ્ટ સેમિનાર થયો ને એના સંદર્ભમાં એક સવાલ કરવાનો હતો કે આપણે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં તમે અલગ અલગ જગ્યાએ બધા કલ્ચરો બતાવ્યા અને નોલેજ હતું આપણી પાસે વિમાનનું ને બધું એમ. હા, તો બધા એક સાથે બધા ડિસ્ટ્રોય થયા કે સાથે બધો સંસ્કૃતિનો નાશ થયો? ના, ગ્રેજ્યુઅલી થયું સાહેબ. મારે હજુ પણ મેં નિલેશભાઈને વાત કરેલી છે 10મીએ જો શક્ય હશે તો હજુ એક સેમિનાર મારો બીજો એક ગણિત ઉપર પેલા સુવર્ણ લંકા ઉપર મારે આપવો છે. જ્યારે દ્વારકા ઉપર આક્રમણ થયું ને તે સમય પછી આ બધું ડિસ્ટ્રોય થવાની શરૂઆત થયેલી ને ગ્રેજ્યુઅલી આ બધું ડિસ્ટ્રોય થયું છે. એટલે લગભગ આજથી 5000 સાલ પહેલા ડિસ્ટ્રોય થવાનું શરૂ થયેલું એ અત્યારે પણ ડિસ્ટ્રોય થઈ રહેલું છે. થેન્ક યુ મિતુલભાઈ. એકચ્યુઅલી છે ને મારે થોડું તમે જેમ સિક્રેટ્સ ઓફ વેદા રિવીલ કરતા જાઓ છો તેમ તમે આઈસીએ ના સિક્રેટ બી રિવીલ કરતા જ જાઓ છો. એટલે 10મી તારીખે વી ઓલરેડી હેવ ઇન પાઇપલાઇન અનધર વેબિનાર ફ્રોમ ડોક્ટર મિતુલભાઈ ત્રિવેદી, અને એ એમણે ખૂબ સુંદર રીતે એમની પાસે એટલા બધા ટોપિક છે કે આપણે ઈચ્છા ધરાવે તો દર અઠવાડિયે 1 કે 2 વાર કરી શકીએ છીએ. એટલે આપણે એમનો ચોક્કસપણે લાભ લેતા જ રહેવાનું છે અને વી વિલ કન્ટિન્યુ ટુ ગેઇન નોલેજ થ્રુ હિમ ઓન વેદાસ એન્ડ એન્શિયન્ટ સાયન્સ ઓફ અવર કન્ટ્રી. 10મી તારીખે છે જ સાંજે 4 વાગે ટ્યુન્ડ ઇન રહેજો. મિતુલભાઈ ત્રિવેદીનો જ છે. નિલેશભાઈ. ઓકે. નિલેશભાઈ, ભરતભાઈ તમારો ક્વેરી સોલ્વ થઈ ગઈ ભરતભાઈ? ઓકે, થેન્ક યુ. થઈ ગઈ. હવે સંજયભાઈ લાપસીવાલા સાહેબ. હા, હવે હું એક પરિચય કરાવવા માંગુ છું. આપણી સાથે છે ને VNSGO ના NSS ના કોઓર્ડિનેટર છે શ્રી પ્રકાશ ચંદ્ર, બરાબર છે. એ અહીં હાજર છે અને ખૂબ જ સરસ પ્રવૃત્તિ કરે છે. એટલે એમને પણ કઈ પ્રશ્નો એવું મને લાગ્યું એટલે એમને પણ કઈક વાત કરવી હોય તો કરી શકશે. પ્રકાશ ચંદ્ર વેલકમ પ્રકાશભાઈ. ઓકે. હાજી નમસ્તે. નમસ્તે. બહુ સરસ રહ્યું. હવે એકચ્યુઅલી અત્યારે વર્તમાન સમયમાં યુવાઓના વચ્ચે ખાસ કરીને વનવાસી ક્ષેત્રમાં આ વિષયને લઈને બહુ જ કન્ફ્યુઝન છે અને મારી રોજ એ પ્રકારના ગ્રુપોમાં ચર્ચા થાય છે. એ લોકો પોતાની જાતને આ વૈદિક પરંપરાથી અલગ માને છે અને કોમ્યુનિસ્ટ અને માર્ક્સવાદના પ્રભાવના કારણે ત્યાંની માનસિક સ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે વૈદિક પરંપરા એટલે અમારા વિરોધી છે અને એ લોકો અહીંયા આવે તો એનો બહિષ્કાર કરવો. એનું પરિણામ આપણે 2 સંતોની જે હત્યા થઈ એ પણ એનો એક ભાગ છે. એટલે એક ભયંકર ષડયંત્ર પૂર્વક આ દેશના યુવાઓને ખાસ કરીને વનવાસી ક્ષેત્રની જે આપણી જાતિઓ છે વનવાસી બંધુ એને ભ્રમિત કરે છે. તો એ લોકો વચ્ચે પણ આ પ્રકારના વિષય મુકાય અને આપણા માધ્યમથી એમને મસ્તિષ્કમાં હૃદયમાં ઉતર્યા વિષય એ પ્રકારનો હું આપને સ્વાગત એટલે નિમંત્રણ પાઠવીશ. એ પ્રકારના યુવાઓ વચ્ચે સેમિનાર માટે આપ સમય આપશો. ચોક્કસ. હું જ્યાં સુધી અહીંયા અવેલેબલ છું તમારી વચ્ચે છું ત્યાં સુધી તમારા માટે પૂરેપૂરો સમય છે પ્રકાશભાઈ. પ્રકાશભાઈ તમે મારી જોડે કોઓર્ડિનેશન કરી લેજો. મિતુલભાઈ જોડે આપણે સંપર્કમાં જ છીએ અને આપણે આવા 2-4 સેમિનાર કરવા અલગ રીતે વિચારી જ રહ્યા છે. બરાબર છે. એટલે આજે તમને જોડે સંજયભાઈ એમ કહેવા માંગુ કે મિતુલભાઈ છે ને ઓન એન્ડ ઓફ હોપિંગ કર્યા કરે છે અહીંયા અને અમેરિકા વચ્ચે. તેઓ નાસા સાથે પણ સંકળાયેલા છે. એટલે અત્યારે તો કેવું છે લોકડાઉન ને કારણે અહીંયા જ છે.
એટલે બરાબર એટલીસ્ટ છે. 1 મહિના તો ખરા રહ્યા એમ માની શકાય હા, આપણે. હા ચોક્કસ ફાયદો લેવો હોય તો લઈ શકાય. ચોક્કસ. થેન્ક યુ સંજયભાઈ. પરસી સાહેબ ને કંઈક પૂછવું છે. જરૂર. હા સર, એક પહેલા સોરી સર, એક અનુજભાઈ કરીને હતા પણ આઈ ડોન્ટ થિંક સો ઇઝ એની અત્યારે કન્ટિન્યુ છે આપણી જોડે. અનુજભાઈ પચ્ચીકર સાહેબ પ્લીઝ. અક્ષયભાઈ. અક્ષય પચ્ચીકર. હા સર. ગુડ ઇવનિંગ સર. ગુડ ઇવનિંગ અક્ષયભાઈ, તમારો વિડીયો ચાલુ થાય તો કરી શકશો? હા ચોક્કસ, આઈ વિલ સ્ટાર્ટ માય વિડીયો. એ વિડીયો મારો સ્ટાર્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. નો ઇશ્યુ, નો ઇશ્યુ, કારણ કે કદાચ તમારું નામ જાણીતું છે એટલે પૂછું છું. અક્ષયભાઈ એસવીઆઈ ટેલમી ના સુરત ચેપ્ટરના પ્રેસિડેન્ટ છે મિતુલભાઈ. ઓકે ઓકે ઓકે. મિતુલભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ, તમે મને જાણી તો કીધો. એકચ્યુઅલી તમે ખૂબ જાણીતા છો, તમારું નામ ખૂબ જ જાણીતું છે અને મને આજે બહુ સરસ માહિતી આપે પ્રદાન કરી. મારો એક પ્રશ્ન એવો હતો કે તમે આટલું બધું રિસર્ચ કર્યું છે અને ધેટ ઇઝ ઓથેન્ટિક રિસર્ચ. You are working with ISRO and NASA also. So why we are not including this Vedic science into our curriculum? સર એ વાત ચાલી રહેલી છે. સંજયભાઈ જોડે જે હમણાં વાત થઈ એ પ્રમાણે થોડાક વખત પહેલા આ બધી વાતચીત થયેલી છે અને જોઈએ છે હવે આ બધું એકવાર લોકડાઉન પતે પછી આ યુનિવર્સિટી ને બધાની જોડે પણ આ અંગે વાતચીત કરવી છે. સાહેબ બે રીતના થઈ શકે, એક થિયોરોટિકલ થઈ શકે, પણ હું એવું માનું છું કે થિયોરોટિકલ જે આપણે કરીએ તેના કરતા પ્રેક્ટિકલ કરીએ ને લાઈફની અંદર તો એ વધારે ઝડપથી અસરકારક છે. અને ધેટ ઇઝ ધ રીઝન કે મેં જે કોર્સ હમણાં જે ડિક્લેર કર્યો ને ધેટ ઇઝ નોટ ફોર માય સેક, એ બિઝનેસ નથી, પણ ધેટ ઇઝ જસ્ટ સિમ્પલ કોર્સ અને હું એવું માનું છું કે દરેકે એની અંદર જોડાવું જોઈએ. ના ના, એ તો ખૂબ જ સાચી વાત છે મિતુલભાઈ. એ જ કદાચ કરિક્યુલમ બની શકે છે. આપણને આપણી સંસ્કૃતિનું ખૂબ જ ગૌરવ છે જ, પણ એને કરિક્યુલમના લેવલ પર જ્યારે જાહેર કરવામાં આવે તો ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ બાય યુનિવર્સ. યા એ બધી વાતચીત ચાલી રહેલી છે, પ્રયત્ન પણ ચાલે છે અત્યારે. પચ્ચીકર સાહેબ હું એમાં તમને થોડુંક, હા અક્ષયભાઈ સંજય લાપસીવાલા બોલું છું. એ બાબતમાં મિતુલભાઈ જોડે, હા એ બાબતમાં મિતુલભાઈ જોડે અમારે એક બે વાર ટેલિકોન્ફરન્સિંગ થયું પણ છે અને યોગ્ય વ્યક્તિ જોડે સંકલનમાં પણ છે મિતુલભાઈ. અને બીજી એક તમને ખાસ વાત કહું કે હવે પછીમાં નવો જે ટર્મ